Assalamu alaikum dear students. In the previous class regarding this linear programming, we have solved some questions on the basis of graphical method of solving a linear programming problem. And so far we have discussed 6 questions in that exercise, and now we are on question number 7. The important question of this exercise, and it is all about our problem is to minimize and maximize z is equal to 5x plus 10y subject to the constraints x plus 2y is less or equal to 120, x plus y is greater or equal to 60, x minus 2y is greater or equal to 0, x is greater or equal to 0, and y is greater or equal to 0. So this is a bit different question because here we have to find both the maximum as well as the minimum value of the objective function, which is z is equal to 5x plus 10y. Suppose we are keeping that as first, this one as second, this one as third, this one as fourth, and this one as fifth. The difference in that question is that first we have to find both maximum as well as the minimum of this objective function of this linear programming problem, and secondly there are 3 structural constraints involved in that linear programming problem. So a bit lengthy but the same procedure. That is, we have to solve this question with the help of graphical method, and we know that we have concised the graphical method in 2 steps. In the first step we are calculating the feasible region, and in the second step we are finding the value of an objective function. So same is the case here. Here lies in its solution the step number first, that is step first में हम क्या करेंगे, to find the feasible region. स्टेप फर्स्ट में हम फीजिबल रीजन को ऑब्टेन करेंगे. फीजिबल रीजन को ऑब्टेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सारे स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट को पहले प्लॉट करना पड़ेगा ऑन अ ग्राफ पेपर. सो पहले हम प्लॉट करेंगे स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट सेकंड को, और स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट को प्लॉट करने के लिए चूंकि ये इनइक्वालिटी होती है तो इसको प्लॉट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक लाइन चाहिए, मतलब उस रीजन की बाउंड्री चाहिए. तो बाउंड्री के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये एक इक्वालिटी ये जो कंसिडर करनी पड़ेगी लाइन x plus 2y is equal to 120. To plot the inequality second, let us consider a line. हम एक लाइन को कंसिडर करेंगे, and that must be x plus 2y is equal to 120. हमने लाइन को कंसिडर किया है x plus 2y is equal to 120. अब हमें जानना है कि ये लाइन कौन कौन से पॉइंट में से पास हो रही है. सो दिस लाइन passes through the points. This line passes through the points. This line passes through the points. Yes. इसके लिए हम कंसिडर करेंगे लाइन x plus 2y is equal to 120. इसके लिए एक टेबल बना देंगे. जैसे मैंने कहा कि अगर आपके पास 2 स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट है तो 3 वैल्यू ले लो, लेकिन यहां पे इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में 3 स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. सो इन द टेबल वी हैव टू जस्ट कंसीडर 4 वैल्यूज. तो ये रहा पहला वैल्यू, दूसरा वैल्यू, तीसरा वैल्यू और चौथा वैल्यू. पहला वैल्यू हम क्या करेंगे, x को पुट करेंगे 0. जब x को पुट करेंगे 0, 2y is equal to 120 means y is equal to 60. So the first point through which the line passes is a of 0, 60, right? And finally हम y को पुट करेंगे 0. जब y को पुट करेंगे 0 तो x का वैल्यू आएगा 120, and the fourth point through which the line passes must be 120 and 0. अब ये बीच के 2 पॉइंट रह गए हैं. ये कौन से पॉइंट लेने हैं, फॉर कन्वीनियंस हम क्या करेंगे, यहां से जो कंसीडर की लाइन और यहां से जो कंसीडर की लाइन, उन 2 लाइंस को आपस में सॉल्व कर देंगे और निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो अगर आप देखोगे यहां से लाइन आएगी x plus 2y is equal to 120, और यहां से लाइन आएगी x plus y is equal to 60. इन 2 लाइन्स को सॉल्व कर दो, सीधे सब्ट्रैक्शन कर दो, माइनस 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 एक्स प्लस एक्स विल कैंसिल आउट.
2y minus y, that is y is equal to 120 minus that is 60. So y को 60 यहां पे पुट कर दो तो x का वैल्यू आएगा 0 मींस पॉइंट आएगा 0 कामा 60 जो ऑलरेडी प्लॉटेड ही है। तो हम यहां पे साइड में लिख के रख लेंगे कि 0 कामा a ऑफ 0 कामा 60 जो है वो सेकंड में से जो लाइन आएगी और थर्ड में से जो लाइन आएगी उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, मींस इस टेबल में हम फिर 3 वैल्यू 4 वैल्यूज की जरूरत नहीं पड़ेगी, 3 ही की पड़ेगी, क्योंकि 0 कामा 60 पहला वैल्यू भी आ रहा है, पहला पॉइंट भी आ रहा है, और 0 कामा 60 लाइन फर्स्ट और लाइन सेकंड का, यानी लाइन इन इक्वेशन सेकंड और इन इक्वेशन थर्ड में जो लाइन्स आ रही है उन दो लाइन्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी है। अब फाइनली हम देखेंगे ये वाली लाइन और इस वाली लाइन में जो कॉमन पॉइंट आएगा वो क्या रहेगा। तो कंसीडर करेंगे x plus 2y is equal to 120 and x minus 2y is equal to 0, right? सब्ट्रैक्शन कर दो, माइनस बनेगा प्लस बनेगा, माइनस बनेगा माइनस x प्लस x will cancel out, plus 2y plus y that is 4y is equal to 120, so y must be equal to 30, तो y का वैल्यू 30 आ रहा है। y का वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो 30, 230 हजार 60, तो x का वैल्यू 60 आएगा, मतलब पॉइंट आएगा 60 कामा 30, तो इस पॉइंट का नाम B रखेंगे और इस पॉइंट का नाम यहां पे C रखेंगे, राइट। तो यहां पे मेंशन कर देंगे दिस लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट्स, यस, A of 0 कामा 60, B of yes 60 कामा 30, 60 कामा 30 and C of yes 120 कामा 0। ये इन 3 पॉइंट्स में से पास हो रही है। अब सबसे पहले इन 3 पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं। तो यहां पे सपोज आपका ग्राफ बन रहा है जस्ट लाइक दिस अवर पॉजिटिव y एक्सिस, दिस अवर पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस OX एंड पॉजिटिव y एक्सिस OY। चूंकि हमें पॉइंट जो है 1 2 3 4 में नहीं है, बड़े पॉइंट्स हैं, 60 है 120 है, तो इसका मतलब हम लाइन को डिविजन्स में बड़े डिविजन्स यहां पे ले लेंगे। सपोज यहां पे है आपका 0, यहां पे है सपोज आपका 20, यहां पे 20 है, यहां पे 40 है, यहां पे 60 है, यहां पे 80 है, यहां पे 100 है, यहां पे 120 है, यहां पे 140 है। 20 डिविजन्स में ले लेंगे, 20 40 60 80 100 120 140। Similarly along the y axis, this is our 20, this is 40, this is 60, this is 80, this is 100, this is 120. So 20 40 60 80 100 and 120, right? तो सबसे पहला पॉइंट जो हमने प्लॉट करना है वो है a of 0 कामा 60। a का वैल्यू 0 और x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 60, तो पॉइंट यहां पे आएगा। वी विल नेम दैट एज a of 0 कामा 60, राइट। दूसरा पॉइंट जो b आ रहा है 60 कामा 30, x का वैल्यू 60 और y का वैल्यू 30, 20 और 40 के बीच में आएगा, मतलब पॉइंट यहां पे आएगा 60 कामा 30। तो इस पॉइंट का नाम यहां पे रखेंगे b of 60 कामा 30, राइट। और फाइनली जो थर्ड पॉइंट है वो है c of 120 कामा 0 एंड दिस इज योर c of 120 कामा 0। अब इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे बाय अ लाइन, तो द लाइन मस्ट बी लाइक दिस, और इस लाइन का यहां पे हम नाम रखेंगे, ये पहले वाले रीजन के लिए है तो इसलिए x plus 2y is equal to 120, x plus 2y is equal to 120। अब हमें बाउंड्री नहीं चाहिए, हमें रीजन चाहिए। तो रीजन इस लाइन के नीचे आएगा, रीजन इस लाइन के ऊपर आएगा, डिसाइड करेगा ओरिजिन को सब्स्टिट्यूट कर दो। 0 plus 0 is lesser equal to 120, means 0 is lesser equal to 120, that is right। So the origin satisfies the region must be towards the origin, मतलब region must be below the line। तो रीजन जो आएगा वो ऐसे आएगा जो सेटिस्फाई करेगा इनइक्वालिटी सेकंड,
वो वाला रीजन आपको ऐसे मिलेगा, राइट? हो गई इनइक्वालिटी सेकंड। अब आएंगे इनइक्वालिटी थर्ड पे। टू प्लॉट द इनइक्वालिटी थर्ड, टू प्लॉट द इनइक्वालिटी थर्ड, इनइक्वालिटी थर्ड को प्लॉट करने के लिए हमें फिर से कंसीडर करनी पड़ेगी लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। लेट अस कंसीडर ए लाइन, let us consider a line x plus y is equal to 60. Let us consider a line x plus y is equal to 60. जब हम कंसिडर करेंगे लाइन x plus y is equal to 60, तो x plus y is equal to 60 आप देखेंगे कौन कौन से पॉइंट्स में से पास हो रही है। इसके लिए x plus y is equal to 60 के लिए हम टेबल बना देंगे यहां पे। तो टेबल में फिर से हमें 4 वैल्यूज चाहिए। ये वैल्यू ऑफ x है, ये वैल्यू ऑफ y है, राइट? पहला वैल्यू हम x को पुट करेंगे 0, तो y का वैल्यू आएगा 60, सो 0,60। लास्टली हम पुट करेंगे y को 0, तो x इज इक्वल टू 60, राइट? तो 0,60, 0,60 सेकंड को भी सेटिस्फाई कर रहा है, 0,60 थर्ड को भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब यहां से जो दो लाइन्स आ रही है, उन दो लाइन्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0,60 ही है। क्लियर? नाउ जब y को पुट किया 0, तो x का वैल्यू आ गया 60। अब हम देखेंगे सेकंड और थर्ड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है। तो इसके लिए इनको सॉल्व करेंगे। ये आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, यहां से आएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्शन कर दो, माइनस बनेगा, प्लस बनेगा, माइनस बनेगा, माइनस x प्लस x विल कैंसिल आउट, प्लस 2y प्लस y दैट इज 3y, 3y इज इक्वल टू 60, मतलब y इज इक्वल टू 20, तो y का वैल्यू 20 आएगा। y का वैल्यू यहां पे 20 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 2 20s आर 40, तो x का वैल्यू 40 आएगा। तो ये लाइन जो है 3 पॉइंट्स में से फिर से पास होगा। 0,60 का ऑलरेडी एक नाम है, दैट इज a, तो b और c आ गया। इसका नाम यहां पे रखेंगे d और इसका नाम यहां पे रखेंगे e। सो दिस लाइन passes through the points. Let us consider a line, this line passes through the points. This line passes through the points. ये लाइन जो है किन पॉइंट्स में से पास होगी? Yes, a of 0,60, a of 0,60, yes, d of 40,20, d of 40,20, and e of 60,0, e of 60,0. क्लियर? अब इन 3 पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे ग्राफ में, तो 0,60 इज ऑलरेडी प्लॉटेड दिया। अब हम आएंगे d पे 40,20, x का वैल्यू 40 और y का वैल्यू 20, तो मतलब पॉइंट यहां पे आएगा 40,20। सो नेम दैट पॉइंट एज d of 40,20, d of 40,20, right? And finally we have e of 60,0, तो e of 60,0 मतलब यहां पे आएगा। सो नेम दैट पॉइंट एज e of 60,0। अब इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो बाय लाइन। जब इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे बाय लाइन, तो लाइन बिल्कुल इस तरह आएगी। And name that line as x plus y is equal to 60. x plus y is equal to 60. हमें लाइन नहीं चाहिए, हमें रीजन चाहिए, तो हमें बाउंड्री मिल रही है। अब हम देखेंगे रीजन जो है वो लाइन के नीचे आएगा या लाइन के ऊपर आएगा, डिसाइड करेगा फिर से ऑरिजिन। तो x को पुट कर दो 0, y को पुट कर दो 0, 0 प्लस 0, तो आएगा 0 इज ग्रेटर और इक्वल टू 60, दैट इज नॉट ट्रू। So origin does not satisfy the region. The origin does not lie in the region. So region must not be towards the origin. It must be away from the origin. So it is not below the line, then it is above the line. तो region जो है वो ऐसे आएगा, ये आएगा region, right? अब आएंगे last inequality पे, full stop. To plot the inequality fourth. अब हम fourth पे आएंगे। To plot the inequality fourth, to plot the inequality fourth, let us consider a line. हम लाइन को कंसिडर करेंगे। वो लाइन क्या होनी चाहिए? Yes, x minus 2y is equal to 0. x minus 2y is equal to 0.
अब x माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो जो लाइन है ये देखेंगे कौन से पॉइंट्स में से पास हो रही है। x माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो, यहां से जो पॉइंट आया था अभी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थर्ड एंड फोर्थ, वो क्या आया था जब हमने ये सॉल्व कर दिया था। सो यहां 3y इज इक्वल टू 60 आया था, मतलब y इज इक्वल टू 20। जब y को 20 यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x का वैल्यू 40। सो 40, 20 जो पॉइंट है, ये 40, 20 जो पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थर्ड एंड फोर्थ है, राइट। अब हम यहां पे देखेंगे टेबल में क्या करेंगे, x और y की वैल्यूज ले लेंगे। x को पुट करेंगे 0, जब x को पुट करेंगे 0 तो y का वैल्यू भी 0 आएगा, मींस इट विल डेफिनेटली पास थ्रू द ओरिजिन। तो यहां पे एक पॉइंट आपको मिलेगा, क्लियर। अब दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो ले लेंगे, सेकंड और थर्ड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आया था, सेकंड और थर्ड का नहीं है हमें, सेकंड और थर्ड हमें चाहिए, सेकंड और फोर्थ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सेकंड एंड फोर्थ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर हम ले लेंगे तो डायरेक्टली हम यहां पे x है, यहां पे 2y ऐड कर दो, 2y प्लस 2y माइनस 2y प्लस 2y 0, तो x प्लस x दैट इज 2x। सो x इज इक्वल टू 2x इक्वल टू 120, x इक्वल टू 60। तो x का वैल्यू यहां पे 60 आएगा। जब x का वैल्यू 60 आ गया, अब x का वैल्यू 60 पुट कर दो यहां पे, यहां पे x का वैल्यू 60 पुट कर दो तो 2y इज इक्वल टू 60, मतलब y इज इक्वल टू 30। सो 60 कामा 30 आएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेकंड एंड फोर्थ। और फाइनली थर्ड एंड फोर्थ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आया था वो आया था अभी कौन सा, 40 एंड 20। सो 40 एंड 20। अब 0 0 ये ओरिजिन है, 60 कामा 30 हम कहां पे पहुंचे थे, E पे, इसका नाम यहां पे F रखेंगे, और 40 कामा 20 ऑलरेडी इसका नाम है, 40 कामा 20 का क्या है वो, D। सो इसका नाम यहां पे D रखेंगे। नाउ दिस लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट्स, दिस लाइन passes through the points this line passes through the points। वैसे 60 और 30 का नाम भी है B, तो इसका नाम अलग से रखने की जरूरत नहीं है, इसका नाम B है। सो दिस लाइन passes through the point is B ऑफ, एक तो O ऑफ 0,0, दूसरा B ऑफ 60,30 एंड तीसरा यस D ऑफ 40,20, D ऑफ 40,20। अब इन तीन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, ये ऑलरेडी प्लॉटेड ही है, ऑरिजिन भी प्लॉटेड है, D भी प्लॉटेड है, B भी प्लॉटेड है। तो इन तीन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दो बाय लाइन, तो लाइन आपको ऐसे मिलेगी। अब इस लाइन का नाम यहां पे रखेंगे x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, सो इट इज x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, राइट। अब क्या चाहिए आपको रीजन चाहिए, तो रीजन लाइन के नीचे आएगा या ऊपर आएगा, डिसाइड करें फिर से। ऑरिजिन सब्स्टिट्यूट कर दो, 0 माइनस 0 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, मतलब 0 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, यस दैट इज ट्रू। सो रीजन मस्ट बी बिलो द लाइन, तो रीजन ऐसे आएगा, ये आ रहा है आपका रीजन, क्लियर। अब आपको क्या देखना है कि कौन सा ऐसा रीजन है जो इन तीनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑब्वियसली ये वाला रीजन है, ये काइट शेप्ड रीजन जो यहां पे है, जिसे मैं अभी शेड कर रहा हूं, ये आपका बन रहा है फीजिबल रीजन। सो नेम दैट एज फीजिबल रीजन, राइट। तो यहां पे इनइक्वालिटी फिफ्थ जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। द इनइक्वालिटी फिफ्थ represents the first quadrant, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। और चूंकि ऑरिजिन जो है इनइक्वालिटी सेकंड और फोर्थ को सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन थर्ड को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब जो फीजिबल रीजन है दैट इज शोन शेडेड इन द फिगर। द फीजिबल रीजन इज शोन shaded in the figure. The feasible region is shown shaded in the figure. The corner points of the feasible region are D, B, E and C. The corner points of the feasible region
the corner points of the feasible region, the corner points of the feasible region which are to be examined, for optimum solution are, क्या है वो? एक है d of 40, 20, d of 40, 20, b of 60, 30, yes, e of 60, 0, e of 60, 0, और c of 120, 0. तो ये आपको मिल रहे हैं कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फीजिबल रीजन. तो दैट कंप्लीट्स आवर स्टेप फर्स्ट, मीन्स टू फाइंड द फीजिबल रीजन एंड टू फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ अ फीजिबल रीजन. नाउ फाइनली हमें क्या करना है? हमें इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मिनिमम वैल्यू भी चाहिए और मैक्सिमम वैल्यू. मतलब स्टेप सेकंड जो रहेगा दैट इज टू फाइंड द, स्टेप सेकंड जो रहेगा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, to find the value of objective function. अब हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू चाहिए. तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? एक टेबल चाहिए. टेबल मस्ट कंप्राइजेस ऑफ 2 columns. Column first must contain the corner points and column second must contain the value of z. This is corner points and this is value of objective function z, right? सबसे पहला कॉर्नर पॉइंट हम सपोज यहां पे ले लेंगे b of 60, 30. दूसरा ले लेंगे c of, yes, c of 120, 0. तीसरा ले लेंगे d of 40, 20, d of 40, 20. और चौथा यहां पे ले लेंगे e of 60, 0. अब निकालो वैल्यू ऑफ z. तो वैल्यू ऑफ z में z हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो था एक्चुअली 5x plus 10y. z is equal to 5x plus 10y. yes, 5x plus 10y. तो यहां पे x का वैल्यू 60, y का वैल्यू 30 पुट कर दो. सो 5 into x that is 60 plus 10 into y that is 30. तो क्या आएगा? 300 plus 300 and that is equal to 600. 600, right? अब यहां पे पुट कर दो 5 into 120 plus 10 into 0 and that is equal to again 600 plus that is again 600, right? अब C में D में x का वैल्यू 40, y का वैल्यू 20 पुट कर दो. 5 into 40 plus 10 into 20, so that is equal to 5 40s are 200 plus 200 and that is equal to 400. Clear? And finally we have e of 60, 0. So 5 into 60 plus 10 into 0 and that will come out to be 5 60s are 300 plus 0 and that is 300. So अब हमें मैक्सिमम चाहिए और मिनिमम चाहिए. क्योंकि फीजिबल रीजन जो है बाउंडेड आ रहा है, हमें चेक करने, लास्ट कंडीशन चेक करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है. सो द मैक्सिमम ऑफ z occurs at 2 points, means at b of 60, 30 and c of 120, 0 and the minimum is at e of 60, 0 at the corner point e, right? So इसके बाद जो स्टेप आप लिखोगे, क्या लिखोगे? The minimum of the objective function is 300 which is at a corner point e of 60, 0, right? That is when x equal to 60 and y is equal to 0 and the maximum of the objective function is 600 at 2 corner points b of 60, 30 and c of 120, 0. मतलब b और c पे आ रहा है मैक्सिमम. सो b पे भी मैक्सिमम आ रहा है, c पे भी मैक्सिमम आ रहा है. इसका मतलब BC लाइन सेगमेंट जो है, इस लाइन सेगमेंट के हर किसी पॉइंट पे मैक्सिमम आएगा. सो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज
क्योंकि बी पे भी इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मैक्सिमम आ रहा है, सी पे भी इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मैक्सिमम आ रहा है, पूरी लाइन सेगमेंट इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स पे मैक्सिमम आ रहा है। जब एक लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट्स पे मैक्सिमम आ रहा है तो इसका मतलब लाइन सेगमेंट के हर किसी पॉइंट पे मैक्सिमम आएगा। सो मिनिमम आएगा एट कॉर्नर पॉइंट ई, मिनिमम यहां पे मिलेगा आपको, एंड मैक्सिमम इस पूरी लाइन सेगमेंट बी सी पे मिलेगा, राइट। ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 आर जस्ट लाइक दिस, यू कैन हैव अ ट्राई। और क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत सिंपल है। क्या है उसमें जब आप फीजिबल रीजन को लोकेट करोगे वो आती हैं दो पैरेलल लाइंस, जस्ट लाइक दिस। एक रीजन आता है अबोव दिस लाइन, जस्ट लाइक दिस, और दूसरा रीजन आता है बिलो दिस लाइन, जस्ट लाइक दिस। मतलब देयर इज नो कॉमन रीजन बिटवीन व्हिच सेटिस्फाइज बोथ द टू कंस्ट्रेंट्स। कॉमन रीजन कोई नहीं आ रहा है, इसका मतलब फीजिबल रीजन नहीं बनेगा। जब फीजिबल रीजन नहीं बनेगा तो मैक्सिमम या मिनिमम जो है एग्जिस्ट नहीं होगा। सो ऑल अबाउट द एक्सरसाइज। और इस चैप्टर में एक्सरसाइज फर्स्ट में से ही क्वेश्चन आता है, सेकंड में एक्सरसाइज सेकंड में कभी कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, और एक्सरसाइज सेकंड भी बिल्कुल इसी एक्सरसाइज फर्स्ट की तरह है। अब यहाँ पे एक्सरसाइज फर्स्ट में आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे के रखी होती है, स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स दे रखे होते, और इसी तरह नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट दे रखे होते। लेकिन एक्सरसाइज सेकंड में क्या है, एक वही मतलब क्वेश्चन दे रखा होता है, पहले उसको इस फॉर्म में लेना पड़ता है, फिर सॉल्व करना पड़ता है, बिल्कुल इसी तरह ग्राफिकल फॉर्म में। लेकिन उस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा तो इसी एक्सरसाइज में। एंड दैट इज ऑल अबाउट द लीनियर प्रोग्रामिंग। एंड इन द सब्सिक्वेंट क्लासेस इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एंड दैट इज integration, indefinite integrals and definite integrals. So students, be ready for that, and till then, Khuda Hafiz.